کریں گے موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں کئی روز بعد ایک مرتبہ پھر دھند کے ڈیرے برقرار ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 M11 اور M3 ٹریفک کے لیے بند۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 9 اور زیادہ سے زیادہ 23 تک جانے کا امکان ہے۔ مزید صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں، زین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں پچھلے کئی روز کی نسبت آج جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دھند کا راج بھی جو ہے وہ نظر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ دھند کے باعث لاہور سے جانے والی جو دو اہم موٹر ویز ہیں، موٹر وے M2 اور موٹر وے M11 کو جو ہے وہ رات کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک، جبکہ موٹر وے M11 کو لاہور سے سنبڑیال تک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف درجہ حرارت کی اگر بات کرتا چلوں تو آج کے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 9 ڈگری، جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 88% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور لاہور میں جہاں پر یہ دھند کا راج صبح سویرے میں نظر آ رہا ہے، جبکہ پچھلے کئی روز سے جو سورج کی کرنیں تھیں وہ زمین پر پڑ رہی تھیں، اور آج جو ہے وہ دھند نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ تاہم زیادہ جو ہے وہ دھند نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں میں جو ہے وہ دھند نہیں تھی پڑ رہی، لیکن آج جو ہے وہ دھند جو ہے وہ لاہور میں پڑی ہے، اور جس کے باعث سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور سورج بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی جو کرنیں ہیں زمین پر بکھیرتے، لیکن دھند کے باعث وہ بھی جو ہے اس حوالے سے ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف اگر فضائی آلودگی کی بات کرتا چلوں تو لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جا چکا ہے، جبکہ اس سے قبل پچھلے کئی روز تک لاہور جو ہے وہ چھٹے 7ویں نمبر پر جو ہے وہ جا چکا تھا، اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 200 سے نیچے آ چکا تھا، لیکن آج جو ہے وہ اب فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور آج لاہور کا جو اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 260 سے زائد جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مربوط نظام بھی بنا لیا گیا ہے۔ پتنگ بازی صرف 6، 7 اور 8 فروری کو ہی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، کہتی ہیں بسنت سے پہلے اور بعد میں پتنگ بازی پر سخت ایکشن ہوگا۔ بسنت عوام میں خوشیاں بکھیرنے کا ذریعہ ہے، عوام کے چہروں پر خوشی بکھیرنا چاہتی ہوں۔ بسنت کے حوالے سے عوام میں جوش و خروش دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں بسنت تہوار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسنت کے حوالے سے عوام میں جوش و خروش دیدنی ہے۔ پی ٹی آئی کے گزشتہ 4 سالوں میں فساد و انتشار پھیلایا گیا، پنجاب کے عوام کے چہروں پر خوشی بکھیرنا۔ سیالکوٹ گوجرانوالہ میں بھی بسنت منانے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کے علاوہ بسنت کی کسی صورت اجازت نہیں۔ وہ جو 4 سال کی حکومت تھی 2018 کے آخر سے لے کے 2022 تک، صرف ان کو یہ انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، انتشار کیا ہوتا ہے۔ تو کائٹ فلائنگ از الاؤڈ اونلی ان لاہور، اور صرف جو ایوییشن کا ایریا ہے وہ اس میں کائٹ فلائنگ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے سیفٹی کے ساتھ۔ اور بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو ہم منا رہے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد بسنت الاؤڈ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام اپنے کلچر پر فخر محسوس کریں، بچوں کو پنجابی زبان سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے تعلیم، صحت سمیت مختلف شعبوں میں انقلابی اقدام کیے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کو، جو ہماری ینگر جنریشن ہے، ان کو نہ صرف یہ کہ میں ان کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے، ان کی ٹریڈیشن سے، ان کے کلچر سے میں متعارف کرانا چاہتی ہوں، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک مہذب، تعلیم یافتہ اور ایک رسپانسبل شہری بنے، جو اپنے کلچر میں، پنجاب میں، پنجابی زبان میں جو پرائیڈ جو ہے وہ محسوس کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ گٹروں کے ڈھکن چوری کے معاملے پر قانون لے کر آ رہے ہیں۔ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، بیچنے اور خریدنے والوں کو 1 سے 10 سال سزا ہوگی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 7 فروری کو لبرٹی چوک میں جشن کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا، شہری لبرٹی چوک میں ہمارے ساتھ
बसंत का त्यौहार मनाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि लाहौर और पंजाब भर के शहरी आएँ, लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत त्यौहार मनाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत के हवाले से गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। सूबाई वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात में बसंत मनाने के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं कि बसंत के लिए खुसूसी इंतजाम कर लिए हैं। बैरूनी मुल्क से दोस्त भी बसंत मनाने आ रहे हैं, जबकि सूबाई वज़ीर ने शहरियों से SOPs के मुताबिक ही बसंत मनाने की भी अपील कर दी। 20-25 साल बाद बसंत आ रही है और दूसरा इस जनरेशन को, मैं जिन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ स्कूल्स में, मैंने अपनी बेटी से पूछा उन्होंने कहा बसंत क्या होता है। सो उन सब को ये इंट्रोड्यूस कराना, और इस तरह आपने कहा कि हम अपने भी कुछ स्कूल्स के अंदर, सर हमारा दिल्ली गेट स्कूल है जो हमारी अंदरून बिल्डिंग्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने पसंद की, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेफ पसंद मनाएं, गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस पे अमल करें एंड लेट्स टेल आवर चिल्ड्रन व्हाट दे हैव बीन मिसिंग आउट ऑन। एंड तैयार हूँ इंशाल्लाह, पूरे 3 दिन रौनकें लगेंगी, म्यूज़िक होगा, बहुत उड़ाई हैं, पेचे बहुत सारे लगाए हैं, बो काटे बहुत सारे हुए हैं। सो एक फेस्टिविटी ऐसी है कि मेरे 10 साल बाद मेरे कोई 15-20 दोस्त बैरून ममालिक से आ रहे हैं, मेरे कनाडा के बैचमेट्स आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, दे ऑल्सो एक्साइटेड कि उनके बच्चों को भी बसंत का नहीं पता था। सो इंशाल्लाह रंग और रौनकें, हॉर्स एंड कैटल शो भी आ गया, बसंत भी आ गई, पंजाबी लैंग्वेज भी प्रमोट हो रही है। आवर CM इज़ डूइंग सम वंडर्स। बसंत का जुनून लाहौरियों के लिए सर चढ़कर बोलने लगा है। बसंत में 2 दिन बाकी हैं। बाजारों में रौनकें लौट आई हैं। डोर और पतंगे खरीदने के लिए बड़ी तादाद में शहरी मोची गेट पहुंच गए। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से कीमतें कंट्रोल करने की भी अपील। बसंत का जोश एक बार फिर उरूज पर। लाहौर का आसमान बरसों बाद फिर रंगीन होने को है। वो नस्ल जो बसंत सिर्फ कहानियों में सुनती रही, पहली बार इस त्योहार को अपनी आंखों से देखने निकल पड़ी। बसंत की खुशी के साथ साथ महंगाई का पहलू भी शहरियों को परेशान कर रहा है। पतंग और डोर की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। एक तावा गुड्डा और पतंग 400, 1.5 तावा 6 से 700 रुपए तक जा पहुँचे हैं। 2 पीस का डोर का पिन्ना भी 14,000 रुपए का हो गया। शहरियों का कहना है, हमने बसंत सिर्फ सुनी थी, देखी कभी नहीं थी। 20 बरस बाद अब मौका मिला है तो शौक है, लेकिन सामान काफी महंगा है। हुकूमत को चाहिए था गुड्डी और डोर की कीमतों का भी तायुन किया जाता। डोर इतनी महंगी है कि ये बसंत की इजाजत तो मिल गई है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके लिए ना प्रॉपर इंतजाम करते लोगों को खुश करने के लिए। अब इतनी ज्यादा महंगाई है तो हर बंदे का अपना अपना रेट है। कोई तावे का 400 रुपया रेट लगा रहा है, कोई 350 का लगा रहा है। आपके सामने ये देखो 300 की आवाजें लगा रहे हैं, है कोई ये 300 वाला, एक हवा चलनी गुड्डे ने फाड़ जाना है। ये कम से कम ये 50 रुपए का होना चाहिए था। मार्केट में ये हालात है कि चोर बाजार शुरू है। 200 रुपए का ये गुड्डा हमने 200 रुपए का लिया है, ये देखें जरा, तो 400 रुपए का गुड्डा दे रहे हैं। एक तावा 500-600 रुपए का गुड्डा दे रहे हैं। 1.5 तावा डोर मार्केट में सिर्फ एक बंदे के पास है और ऐसे आई है, ऐसे लोगों ने छीन लिया, किसी के पास डोर नहीं है। सूरत हाल ये है, 2 घंटे से बाजार घूम रहे हैं, किसी के पास डोर नहीं है। ये गुड्डियाँ ली हैं, 10 गुड्डियाँ ली हैं, वो भी 200 रुपए की। 50-60 वाली गुड्डी जो 200 में मिल रही है, डोर किसी के पास नहीं है। अगर एक बंदे के पास आई है डोर 12,000 का पिन्ना, वो भी उसके पास खड़े खड़े ही बिक गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि 20 साल बाद बसंत आई, तलब बहुत ज्यादा है। खाम माल, कागज और डोर बनाने का सामान महंगा हो चुका है, इसी वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। मार्केट में 3 कैटेगरीज हैं। जो कोना तावा है वो बिक रहा है इस टाइम 200 का, और जो तावा है वो बिक रहा है 400, 350। जो 1.5 तावा है वो 550, 600, हर दुकानदार का अपना रेट है। लेकिन इनमें दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, मटीरियल बहुत ज्यादा महंगा हुआ है पीछे से ही। बसंत आई मगर लाहौरियों के लिए जेब का इम्तिहान भी साथ लाई। LDA ने बसंत पर हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। कंट्रोल सेंटर, फील्ड टीमें और क्विक रिस्पांस फोर्स मुतहर्रिक कर दी गई हैं। शहरी बिला खौफ और खतर जश्न बहारा मना सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए LDA ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी रिस्पांस यकीनी बनाने के लिए जामे हिफाजती प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। LDA ने कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है, जबकि कमिश्नर ऑफिस में कायम होने वाले कंट्रोल रूम में भी LDA अफसरान की तैनाती होगी। पब्लिक सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की सरबराही में LDA की गाड़ियाँ फील्ड में मुतहर्रिक रहेंगी। LDA कंट्रोल सेंटर के नुमाइंदगान क्विक रिस्पांस फोर्स के साथ
साथ मुसलसल राबते में रहेंगे ताकि किसी भी वाक़ये पर बर वक्त और मरबूत रद्द-ए-अमल दिया जा सके। LDA की 12 टीमें क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर नामजद की गई हैं, जो बसंत के तीनों रोज फील्ड में फाल रहेंगी। हुकाम के मुताबिक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। लाहौर में बसंत की तैयारियों के लिए वासा स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तमाम काम बसंत के दिनों में बंद रखने का हुक्म दे दिया गया है। वासा के ONM और इंजीनियरिंग स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। वासा का रेवेन्यू स्टाफ भी बसंत के दिनों में फील्ड में ही मौजूद रहेगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तमाम काम बसंत के दिनों में बंद रखने का हुक्म दिया गया है। सानिया बाटी गेट के बाद बसंत पर तामीराती काम बंद रखने का फैसला किया गया है। वास्ता के तमाम सब डिवीजन दफातर में इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए गए हैं। वास्ता के तमाम सब डिवीजन ऑफिस में इमरजेंसी नंबर अवेसा करने की भी हिदायत कर दी गई है। बसंत पर बिजली की बिलातातुल फ्राहमी और पब्लिक सेफ्टी का मामला लेस्को ने 27 निकाती प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। BT से मुतालिक शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी कायम होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बसंत पर बिजली की बिलातातुल फराहमी और पब्लिक सेफ्टी का मामला लेस्को ने 27 निकाती प्लान लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली से मुतालिक शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम होगा। हुकूमत से कोऑर्डिनेशन के लिए कमिश्नर ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में SDOs 24 घंटे मौजूद रहेंगे। वाल सिटी लाहौर में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए दाता दरबार डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम होगा। तमाम ऑपरेशनल और फील्ड स्टाफ को बसंत के अयाम में हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है। लेस्को रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी के लिए 132 kV के ग्रिड स्टेशन पर एक्सियन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। लाहौर सब डिवीजन में शिकायत के लिए 111 नंबर ऑपरेशनल होंगे। फौरी राबितों के लिए तमाम 136 एक्सियन और SDOs के नंबर्स मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर से शेयर कर दिए। लेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी के तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर देखा जाएगा। कोई भी स्टाफ मेंबर करंट खत्म किए बगैर बिजली के तार से पतंग नहीं उतारेगा। लेस्को रिपोर्ट के मुताबिक हाई रिस्क एरियाज में स्पेशल सर्वे करवाया गया है। शाहलम मार्केट, लिबर्टी मार्केट, इचरा बाजार और मोन मार्केट में बिजली के खराब तारों की निशानदही की गई है। इन इलाकों में 46 हाई रिस्क पोल्स को तब्दील किया गया है। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के पेश नज़र महकमा सेहत ने एहतियाती तिब्बी इकदाम जारी कर दिए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मरासले के मुताबिक पंजाब भर के तदरीसी अस्पताल 6 और 7 फरवरी को मामूल के मुताबिक ही खुले रहेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। बसंत फेस्टिवल पर महकमा सेहत भी सरगर्म। पंजाब भर के तदरीसी अस्पताल 6 और 7 फरवरी को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया। हुकाम महकमा सेहत का कहना है कि बसंत की तातीलात के बावजूद सरकारी तदरीसी अस्पतालों में तिब्बी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी ताकि मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मरासले में वाजे किया गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज, OPDs और इंडोर वार्ड्स मुकम्मल फाल रहेंगे। महकमा सेहत ने तमाम तदरीसी अस्पतालों को 6 और 7 फरवरी को नॉर्मल वर्किंग डेज करार देते हुए हिदायत की है कि तिब्बी, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। हुकाम महकमा सेहत के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआलजे में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। IG ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना था कि अवाम की खिदमत और क्राइम को कंट्रोल करना तरजीह है। थाना कल्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। पुलिस का बुनियादी मकसद अमन और अमान का क़याम है। जो ईमानदारी के साथ काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। फोर्स की वर्किंग और अवाम के साथ रवैये में बेहतरी लाएंगे। पंजाब के नए तैनात होने वाले IG राव अब्दुल करीम ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सीनियर पुलिस अफसरान ने IG पंजाब को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुशामदीद कहा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस तशरीफ लाने पर उन्हें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
IG राव अब्दुल करीम ने पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। IG पंजाब ने एडिशनल IGs, DIGs समेत दीगर सीनियर अफसरान से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी तरजीहात लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जो काम शुरू किए गए हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। IG राव अब्दुल करीम ने मजीद कहा कि किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की अव्वलीन तरजीह होती है कि क्राइम कंट्रोल किया जाए। मेरी भी तरजीह यही होगी कि जो काम शुरू किया गया है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे पूरा किया जाए। पुलिस बसंत के हवाले से बहुत एक्टिव है। किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन है वो हमेशा से यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि पुलिस बड़ी एक्टिवली जो है बसंत से, अभी तो देखें ना हम प्रिवेंटिव फेस में, आप पहले ही पोस्ट उसकी बात कर रहे हैं। अभी देखें कितनी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो रॉड्स लगाए जा रहे हैं और बाकी सारे इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बसंत जो है बिल्कुल सेफ। राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 24वें कॉमन से है। उनका शुमार पुलिस सर्विस के इंतहाई प्रोफेशनल अफसरान में होता है। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान और साथी रिपोर्टर मुजाहिद शेख के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी का मामला ऐवान में अपोजिशन बेंचेस मुकम्मल खाली, जबकि हुकूमत के भी महज 28 अरकान ही मौजूद थे। इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर शदीद मज़म्मत की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल खासी ताखीर से पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वक्फा सवालात के दौरान महकमा तवानाई से मुतालिक सवालात ज़ेर बहस आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी तवानाई मंसूर आजम ने अरकान के सवालात के जवाबात दिए। ताहम इजलास में अरकान असम्बली की दिलचस्पी कम दिखाई दी। ऐवान में अपोजिशन बेंचेस मुकम्मल तौर पर खाली रहे, जबकि हुकूमती बेंचेस पर भी महज 28 अरकान मौजूद थे। ऐवान में गुफ्तगू करते हुए उस्मा कारदाद ने कहा कि कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड में बेशुमार गलतियां हैं। किसी की जमीन कम दर्ज है और किसी का कथोनी नंबर गलत है। जो कंप्यूटराइज किया गया है लैंड रिकॉर्ड, उस कंप्यूटराइज डेटा में बहुत गलतियां हैं, बेतहाशा गलतियां। उसमें किसी का CNIC गलत है, किसी का जो रकबा है अगर उसके पास 5 एकड़ है तो वो 4 एकड़ लिखा हुआ है, किसी का कथौनी नंबर गलत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने रिकॉर्ड में खामियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि लैंड रिकॉर्ड सिस्टम नया है और वक्त के साथ खामियां दूर कर ली जाएंगी। जो तो सर पुराने रिकॉर्ड हो चुके हैं कंप्यूटराइज, उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो नए हो रहे हैं सर, उसमें ये आ ज़रूर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी दूर हो जाएंगी। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला मरीम नवाज को बसंत की बहाली के लिए इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। पंजाब का और पाकिस्तान की आवाम का बसंत के त्यौहार का दरीना मुतालबा था और जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑन ग्रास रूट तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आफ्टर डिस्कशन ये फैसला किया है, मैं आपकी वसातत से ये पंजाब का हाउस जो है, ये वज़ीर आला पंजाब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास के अख्ताम पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर शदीद मज़म्मत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, जिसमें मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। मोटरसाइकिल को सेफ्टी रोड ना लगाना भी जुर्म करार दे दिया गया है। लाहौर में सेफ्टी रोड ना लगाने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू, जबकि मोटरसाइकिल सवारों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेस पीरियड खत्म, लाहौर में मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड ना लगाने वाले शहरियों की शामत आ गई। मोटरसाइकिल को सेफ्टी रॉड ना लगाना भी अब जुर्म करार दे दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के इस्तिगासा पर मुख्तलिफ थानों में सेफ्टी रॉड ना लगाने वालों पर मुकदमात का इंदराज शुरू। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमात दफा 188 के तहत दर्ज किए। सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों का भी सामना है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सेफ्टी रॉड ना लगवाने वाले मोटरसाइकिल सवारों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने 12 फरवरी को स्पेशल सेक्रेटरी होम से
बसंत प्लान तलब कर लिया है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए कि सूबे के दीगर शहरों में बसंत मनाने के हवाले से इकदाम की रिपोर्ट दी जाए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने बसंत के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों को मुसावी हकूक हासिल हैं। हुकूमती मशीनरी सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के लिए इक़दामात पर लगी है। सूबे के 12 करोड़ आवाम बसंत मनाने से महरूम हैं। दूसरे शहरों में इक़दामात नहीं किए गए। इस्तदा है कि अदालत हुकूमत को बिला तफरीक बसंत फेस्टिवल के लिए इक़दामात का हुक्म दे। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि महफूज बसंत के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बसंत के हवाले से तमाम डिवीजनों के कमिश्नर्स को कानून में दिया गया है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स किए कि सूबे के दीगर शहरों में बसंत मनाने के हवाले से इक़दामात की रिपोर्ट दी जाए। अदालत आलिया ने बसंत मनाने के हवाले से दरख्वास्त पर स्पेशल सेक्रेटरी होम से बसंत प्लान 12 फरवरी को तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। रहीम स्टोर रायबन रोड ब्रांच की ओपनिंग की खुशी में इनामात की भरमार। रहीम स्टोर ने कस्टमर से किया वादा, वफा कर दिया। जीतने वाले खुश नसीबों को इनामात से नवाजा गया। जबकि CEO राना राफे ने कहा कस्टमर्स के लिए हर मौके पर इनामात देना तरजीह होती है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मौक़ों पर अब तक 800 से 60 उम्रा टिकट्स दिए जा चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली। जो कहा वो कर दिखाया। रहीम स्टोर ने एक और वादा वफा कर दिया। तीसरी ब्रांच की ओपनिंग की खुशी में कस्टमर्स के लिए इनामात की भरमार कर दी। बजरिया कुरंदाजी कस्टमर्स को बड़े इनामात से नवाजा गया। इनामात में 1200 सीसी होंडा सिटी कार, 12 मोटरसाइकिल, आईफोन, होम अप्लायंसेस में AC, LED, 2 वॉशिंग मशीनें, मलेशिया के रिटर्न पैकेज शामिल थे। कुरंदाजी के मौका पर CEO राना राफे ने कहा कि कोशिश होती है कस्टमर्स का एतमाद बहाल रहे। इस बार नई ब्रांच की ओपनिंग पर बड़े इनामात दिए गए हैं। जैसे कि रहीम स्टोर की 3rd ब्रांच की ओपनिंग पे हमने अपने कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ गिफ्ट्स का जो है वो कुरंदाजी के ज़रिए देने का जो सिलसिला है ये प्लान किया था, जिसमें होंडा सिटी 1.2 ऑटोमेटिक, 12 बाइक्स और मलेशिया के ट्रिप्स इंक्लूडिंग होटल टिकट और बहुत सारे होम अप्लाइंसेस, स्कूटी और बहुत सारे इनामात थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सक्सेसफुल तरीके से उन खुश नसीबों के हैंड ओवर हो गए हैं। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक मोहम्मद हफीज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने जीतने वालों को मुबारकबाद और इनामात से नवाजा। मैं राना राफे साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ पे कि उन्होंने जो इनिशिएटिव ये लिया हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। और ये काम करना, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कुरंदाजी के थ्रू इनामात जीते और उनको खुशियाँ मिली, उनके लिए बहुत सी मुबारकबाद। रहीम स्टोर ने जो काम किया जिसमें खुशियाँ बांटी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है और वो इनाम की शक्ल में मिले तो और ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि रहीम स्टोर का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इनामात जीतने वाले कस्टमर्स ने रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा किया। और ये पहली दफ़ा ही हमने यहाँ से शॉपिंग की है और उसी दौरान में हमने टोकन डाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी में इनाम निकला है। अल्लाह का खास करम है कि हमारा इतना बड़ा गिफ्ट निकला है और रहीम स्टोर का थैंक यू। तकरीब में इनामात जीतने वाले कस्टमर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा